أمة بعد ولا كتاب بعد وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأسفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. We are trying basically to know ourselves. इन दुरूस में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना आप पता चल जाए, अपनी पहचान पैदा हो जाए. We know ourselves. Everything goes wrong when we are something else and we try to be something else. सारा मसला ख़राब उसी वक्त होता है जब हम होते कुछ और हैं और बनने कुछ और जाते हैं, और कुछ और बनना चाहते हैं या अपनी हदों से बाहर निकलते हैं. Then we leave our limits, then the problem starts. If a person understands his limit, his reality, then the person really doesn't need much further guidance, but only the details of it. And if a person doesn't understand and know their own reality and don't recognize, then they are a problem for the family, for the husband if it is a wife, for the wife if it is a husband, for the society, and for also in relation to Allah Azza wa Jal, that person fails. Basically, fundamentally, human being and everything else by nature of creation is abd of Allah subhanahu wa ta'ala, is servant of Allah, is worshipper of Allah Azza wa Jal, and should be worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Whatever is in the heavens and earth, they are abd of Allah, they are servants of Allah. You will see in the history from Sayyidina Adam alayhi salam to the last coming person, all the, which you may say, the bad people, the people who Allah subhanahu wa ta'ala condemned, were those people who transgressed the limit of what they are not into the limit or the circle of something else. So they were basically created to serve, and they want service. They were created to know and worship Allah Azza wa Jal, and somehow they wanted other creation to serve them. That created a big problem in the history. Firstly, it began with, from the time of Sayyidina Adam alayhi salam. Sayyidina Adam alayhi salam was a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, messenger, a prophet. Shaitan also was a servant
of Allah Azza wa Jal, somehow in his mind this thought came that I should be served, I should be honored because I have certain qualities. इसकी आवाज़ ठीक नहीं. So that came into his mind. While the job of the servant is not to question the master, the owner, but it is to serve. It's mentioned in the books, Sayyidina Ibrahim bin Adham, one of the saintly persons, one of the awliya, or about another wali, just for the sake of understanding, someone asked him, किसी ने हज़रत इब्राहिम बिन अदहम या किसी और वली, बहुत बड़े दर्जे के वली से पूछा कि आपको ये बंदगी, ये अल्लाह का कुर्ब, ये अल्लाह की दोस्ती, ये कैसे हासिल हुई? How did you attain this friendship and this servanthood of Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal? तो उन्होंने सोचा, they thought that he will mention a name of a great scholar, he mentioned a name of a great wali कि मैंने उनसे सीखा. उन्होंने जवाब दिया, मैंने अपने गुलाम से सीखा. I have learned it from my own servant. तो उन्होंने कहा कि आपका गुलाम कोई बहुत बड़ा आलिम है, वली है? He is a great scholar or wali? He said, no, he is not a scholar, nor an arif billah, but he is a simple servant. But they said, then how did you learn from him then? That is why I keep saying to you and myself, firstly, that the true righteous people, the wise people, are always learning from everything. They're learning from even animals. They're learning from ignorant people. And the foolish even do not learn from the book of Allah and the messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam. For them that is not learning as well. और जो नेक लोग सालिहीन होते हैं वो तो जानवरों से, सूरज से, चांद, बारिश, जितनी चीज़ें हैं इनसे भी इबरत और सबक ले लेते हैं, यहाँ तक कि बेवकूफ़ों से भी सबक सीखते हैं वो. So much so that they even learn from fools. How? वो कैसे? ये बेवकूफ़ों से क्या सीखेगा बंदा? वो आप सोचें. The one of the most wise people after Anbiya alayhimus salam and Sahaba Rizwanul alayhim ajma'in mentioned in the Quran is Hazrat Sayyidina Luqman radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Luqman is known as a wise person. Even Allah subhanahu wa ta'ala said that this person is wise and I gave wisdom. Someone asked him that the behavior which you have, the things what you do and what you say is wonderful. How have you learned this? लुकमान से पूछा, ये आपने ये हिकमत दानाई की बातें, ये अमल, ये कैसे सीखा? उन्होंने फरमाया कि मैंने बेवकूफ़ों से सीखा. मैंने बेवकूफ़ों से सीखा. I've learned it from fools. Said, how? वो कैसे? बेवकूफ़ों से कैसे बंदा सीखे? तो उन्होंने जवाब दिया, he answered, whatever the fools do, I don't do it. Whatever the fools say, I don't say such words. And whatever they think, I don't think like that. I don't act like that. And I don't speak like that. I do exactly the opposite of what they do.
फरमाया मैंने इस तरह सीखा है कि बेवकूफ़ जिस तरह गुफ्तगू करते हैं मैं उससे उलट गुफ्तगू करना शुरू कर दी, जिस तरह का वो अमल करते हैं मैं उसका उलट अमल करता हूँ, और जिस तरह वो सोचते हैं मैं उससे और उलट तरह सोचता हूँ। तो मैं ये करते करते मुझ में ये चीज़ें आ गई। हमारा क्या मसला है, हमें एक बेवकूफ़ मिलता है, वो बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। पर्सन वी मीट अ पर्सन हु इज़ नॉट वाइज पर्सन। अब मैं यही बता दूँ बेवकूफ़ को, बेवकूफ़ है वो जो आखिरत को सोच के अमल नहीं करता। बेवकूफ़ वो नहीं जो अस्पताल में बंद है या उसको होश नहीं, वो है बेवकूफ़ असल जो आखिरत को देख के और अल्लाह को हाजिर और नाज़िर समझ के अमल नहीं करता, वो बेवकूफ़ है। अक्लमंद वो है जो मौत के बाद वाली ज़िंदगी की बुनियाद पर अमल करता है, नतीजा देख के। दुनिया में भी हम उसी को अक्लमंद कहते हैं जो नतीजा देख के बात कर अमल करता है। द वाइज पर्सन लुक्स एट द एंड रिजल्ट एंड बेस्ड ऑन द एंड रिजल्ट ही रिएक्ट्स एंड ही चूजेस एन एक्शन। वो अपना एक अमल चुन लेता है, वो पहले नतीजे पर गौर कर, इसका नतीजा क्या होगा, फिर उसकी बुनियाद पर अमल। तो हज़रत लुकमान ने तो फरमाया मैं बेवकूफ़ों की तरह बातें उनकी उल्ट करता हूँ, उसके बरअक्स करता हूँ। आई एक्ट अपोजिटली, आई स्पीक अपोजिटली व्हाट दे स्पीक। अब हमारा ये मसला है कि हमें कोई बेवकूफ़ मिल जाता है, वो गाली दे रहा है, मान बजाय सबक सीखने के हम भी गाली देना शुरू कर देते हैं। तो हम तो बेवकूफ़, वो लीडर बन गया, हम उसके पीछे लग गए क्योंकि उसने नारा मारा, हम उसके पीछे हैं। ही कॉल्ड टू समथिंग, वी आर आफ्टर हिम। अ पर्सन इज एंग्री, एक बंदे को गुस्सा आया हुआ है, आपको भी गुस्सा चढ़ गया, वो बेवकूफ़ है, वैसे ही गुस्सा उसको आया हुआ है, उसने बेवकूफ़ी की वजह से, और फूलिशनेस ही इज एंग्री, यू ऑल्सो बिकम एंग्री। While Hazrat Luqman is saying that if he is angry, you learn not to become angry in that situation. If he is swearing, you learn to say something good. Because opposite to swearing is dua. गाली जो है कोई बंदा देता है तो उसका रद्द अमल, उसका उलट क्या है, दुआ देना। तो इसलिए अंबिया का अखलाक ये रहा है कि लोगों ने गालियां दी, लोगों ने बदकलामी की, उन्होंने दुआएं दी, क्योंकि वो अक्लमंद तरीन हस्तियां होती अंबिया अलैहिमुस्सलाम। अदरवाइज इफ यू डू नॉट डू दिस देन यू बिकम द फॉलोअर ऑफ द फूल। अब एक बंदा बदतमीजी पर उतर आया, ही हैज एक्चुअली कम डाउन अपन सच थिंग्स, सच सेइंग्स, such actions, such behavior, you should do opposite to what he is doing. अब आपको उससे उलट करना चाहिए था अगर आप कामयाबी, अगर आप अक्लमंदों की कैटेगरी में आना चाहते हैं। What we do is we tend to follow it. We tend to follow, इसको गुस्सा है तो हम ज़्यादा गुस्से होंगे, वो एक गाली दे रहा है हम दो देंगे, वो जो है अपने जिस्म से कुछ कर रहा है हम भी जो है वो कहेंगे हम भी ये करेंगे, हम भी मारेंगे उसको, ये होगा वो होगा। तो फिर जो है वो मामला उलट हो जाता है। द थिंग्स एक्चुअली देन गोज अगेंस्ट अस बिकॉज वी, क्यों खराब हो जाता है, व्हाई द मैटर बिकम्स वर्स्ट, बिकॉज वी हैव मेड दैट पर्सन आवर लीडर। हमने उसको अपना लीडर बना लिया। लीडर क्या होता है, जो कहता है आओ तुम उसके पीछे आओ, whatever he says you do it after him, that is a leader. If he is swearing you start to swear, he is your leader. If he is acting foolishly, वो गुनाह कर रहा है, आप भी शुरू हो जाए, आपका वो लीडर है, आप माने ना माने आप उसके पीछे चल रहे हैं, you are going after him. So the righteous people,
They even learn from, as I said, from animals, so much so even from fools. बेवकूफ़ों से भी वो सीखते हैं और दूसरे लोग औलिया अल्लाह और अंबिया अलैहिमुस्सलाम से भी नहीं सीखते. They don't learn from these people as well because they say we know better. So Hazrat Ibrahim bin Adham rahmatullah alayhi, when he was asked that how did you learn servanthood, आपने बंदगी कैसे सीखी है, तो आपने फरमाया मैंने अपने गुलाम से सीखा. I've learned from my own servant. How have you learned from your own servant when your servant is not a scholar, is not a wali? He said, when I bought this servant, I said to him that, oh servant, what is your name? What is your name? आपका नाम क्या है? आप किस नाम से पसंद करेंगे मैं आपको बुलाऊं? He said, does the servant has a name? कहने लगा कि गुलाम का भी कोई नाम होता है, जो मालिक दे वही उसका नाम है. Whatever the master calls, that's my name. मेरा कोई नाम है तो बिकी हुई चीज हो. I'm sold already. आप जो मुझे बुलाएंगे वही मेरा नाम. Then he said, I asked him, what's your eating habits? तुम क्या खाते हो? वो कहने लगा गुलाम का भी कोई इख्तियार होता है, कोई इंतखाब होता है. Has the servant got a choice? I am slave. Whatever the master will give, that is my risk. That is what I eat. फिर कहने लगे अच्छा क्या पहनोगे? कुर्ता पहनो, कमीज पहनोगे, क्या करोगे? What will you wear? He said, does the servant have a choice? I am slave. Slave does not have choice. Whatever the master like, I'll wear. सोओगे कब? Whenever the master likes, day or night, I'm slave. मैं मुझे आपने खरीदा है, अब मैं सोऊंगा भी उस वक्त जब आप चाहेंगे. So he asked some other question. उसने आपने कुछ और बातें पूछी, तो आपने फरमाया सारी बातें पूछ के, ए काश, I wish I was such a servant of Allah subhanahu wa ta'ala like you have actually mentioned to me the qualities. You have taught me how to be a true servant and worshipper of Allah Azza wa Jalla. You are free. You are no more slave. I would not keep a person like you slave. आपने उसको आज़ाद कर दिया, फरमाया तुम आज़ाद हो, तुम्हारे जैसा बंदा गुलाम रखने के नहीं रखना चाहिए. तुमने मुझे अल्लाह की बंदगी सिखा दी. You have taught me how to be a servant of Allah. Because if Allah subhanahu wa ta'ala likes me, wants me to call me some abd or anything, I should accept. Whatever Allah Azza wa Jal wants me to eat, I shouldn't have my preferences. You've taught me I have preferences. मैं ये खाना है, नहीं खाना, हराम है, हलाल है. So this is Allah Azza wa Jal who chooses, not me. कपड़े जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को सुन्नत वाला लिबास पसंद है, तो मेरा वही लिबास है. If Allah subhanahu wa ta'ala likes the dress of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is my libas. If Allah Azza wa Jal wants me to wake up at tahajjud, that is my waking up time. He wants me to sleep, that is my sleeping time. If He wants to put me through any difficulty, I should forbear it. If He bestows a blessing upon me, I should be thankful. तो आपने फरमाया कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह said that I learned the servanthood. Really, the person who understands this, many of his difficulties, his depression, his agony and pain goes away. But most of us actually, why we suffer, we have expectations from people, from society, from other people as well.
वी हैव एक्सपेक्टेशन, हमें तवक्कुआत होती है, उम्मीदें होती हैं। अरे मेरी इज्जत इस तरह होनी चाहिए जी, ये मेरा ये है, मेरे मुकाम का नहीं आपको पता, ये है वो है ये। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है, देन समटाइम यू डोंट गेट। एवरीवन इज इंडिपेंडेंट, they won't respect you, they won't give you the type of treatment which you have expected. Then things start going wrong, then you become angry, you actually hate other people, you put allegation on them, you try to put them down, you try to manipulate them, you try to control them. फिर ही मसला शुरू होता है। अब वलियों के साथ कम लोग क्यों नहीं वो किसी से दुश्मनी करते? वो कहते हैं भाई ये लोग उम्मीद ही नहीं रखते वो किसी से। सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, he said, I've lived with people almost more than 60 years, and I have found them not but a scorpion. मैं 60 साल से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे मामलात रहे हैं और मैंने इनको बिच्छुओं के सिवा कुछ नहीं पाया। भाई ये लोग बिच्छू जहाँ ये कोई डंग मारना जो है चाहता है या मार सकता है वो मार देता है। That's the reality of people, because they are, many of them, most of them are selfish. They will look at their benefit. If there's benefit there, they will actually sting you, they will harm you. That's not even only in individual cases, even countries. If they see their interest, they'll cooperate with you. If they don't see interest, we don't want to know you. Even it's written in the Constitution of America, United States of America. The Constitution has written in it that America has no friends and no enemies. It's not a friend of anyone. It's not the enemy of anyone. It is the friend of its own interest. Whoever is in the interest and the benefit of the country, it is friend. Whoever is not, it is enemy. That is why लोग कहते हैं अच्छा देखो जी पहले वो सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है, पहले जी इराक को अब छोड़ दिया। भाई जो वो पहले उन्होंने लिखा हुआ है अपने, जिसको वो वही की तरह उसके पीछे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, ना हमारा दुश्मन है। जो हमारे फ़ायदे में जब तक वो हमारा दोस्त है, जब हमें हमारे फ़ायदे का नहीं है हमारा दुश्मन है। बस बात है तब। तो इसलिए देयर फ्रेंडशिप इज़ नॉट फ्रेंडशिप, देयर एनिमी इज़ नॉट एनिमी, they are selfish. Similarly on the individual level, Islam के constitution में, the Quran which is the constitution of Islam is not there. Islam sides with the truth. No matter it is against you, no matter it is against your interest, it sides with the truth, not with the interest or benefit. Anyway, I was saying to you that if you know your reality, many things become easier. Where this trouble began in the life of Shaitan, who was the servant of Allah subhanahu wa ta'ala, and if he had known this reality in the true nature, he would have never objected why Allah subhanahu wa ta'ala is asking him to bow down to Hazrat Adam. He would never say, I am good in front of Allah. Who can say good? They are good. They are better in the front of Allah subhanahu wa ta'ala. Who can say they are high? I am very tall in front of, for example, standing in front of Mount Everest, saying to the mountain, I am very tall. That is foolishness. ये तो बेवकूफ़ी है कि पहाड़ के सामने खड़ा होकर कहना देखो मेरा कितना ऊंचा लंबा कद है। This shows either the person is insane or he doesn't know himself. कि या तो बेवकूफ़ इस तरह कह सकता है या वो कह सकता है कि जो जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा कद क्या है और क्या उसकी हकीकत है। तो शैतान ने अल्लाह के सामने खड़े होकर कहा जब अना खैर, आई एम बेटर, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ,
तो उसको अल्लाह की अच्छाई उस वक़्त नज़र नहीं आ रही थी कि अल्लाह है, खैर तो अल्लाह की तरफ से होती है, शर हमारी तरफ से होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला said in the Quran, मा असाबक बिन हसनतिन फमिनल्लाह, anything good which reaches you is from Allah. वमा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, and anything which bad reaches you is from yourself. It is because of you've done something, and that's why it's happening. तो बंदगी का पहचान, बंदगी means servanthood. A person who understands and knows, then his life become easier. Otherwise, you will be treading sometime the rights of other people, sometimes the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, and you are going to have a hard time in this world and hereafter as well. Allah Azza wa Jal said in one of the Hadith Qudsi that greatness, किबर जो है, बड़ाई, किबरियाई, फरमाया कि ये मेरी चादर है. It is my quality. It means it is the quality of Allah. It is the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever will try to share or take it away, Allah Azza wa Jalla said, I will throw him in fire of hell. He will not be able to do so. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Greatness is only for Allah. And it is His right to whomever He wants to give greatness. He wants to bestow, it is up to Him. But the servant doesn't have a right to attribute greatness and grandeur to themselves. तो ये बात जो है, ये समझने वाली है. जिसको ये समझ आ जाए, उसमें आजिज़ी, इनकिसारी, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, वो इसी तरह बनता रहता है. और जो भूल जाता है शैतान की तरह, वो मामला उसका गड़बड़ हो जाता है. So Imam Abdul Wahab Sharani rahmatullah alayhi also was not confused, but rather on a spiritual matter he was confused. जो आपको मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि वो फरमाते हैं कि मुझ में, मेरे दिल में मुकामात की, बड़े बड़े मुकामात की ख्वाहिश पैदा हुई, बड़े बड़े औलिया अल्लाह के मुकामात की, द स्टेशंस ऑफ औलिया एंड सालिहीन, एंड देन आई फाउंड दैट आई डू नॉट हैव देम. मेरे पास तो वो नहीं है औलिया अल्लाह के मुकामात. तो दिस कॉज्ड डिप्रेशन, मतलब मेरी जिंदगी तल्ख और ऐश खराब हो गया. दिस कॉज्ड डिप्रेशन. तो भाई मेरे में तो वो है ही नहीं है, मुझ में तो वो औलिया अल्लाह के मुकामात है नहीं जो हम किताबों में पढ़ते हैं. And he said that I became depressed, and furthermore I was worried that because of this I might actually bring the anger and the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala upon me. कि ये अल्लाह का गुस्सा मुझ पर नाज़िल होगा, गज़ब नाज़िल होगा, मेरा ख़ात्मा ईमान पर शायद ना हो. वो कहते डर गया मैं. And then he said he ran towards a place outside the ancient part of Masr, the Egypt. He lived in Egypt. माते हैं कि मैं मिस्र की कदीम आबादी के बाहर चला गया. वहाँ जब मैं बैठा हुआ था रोज़े के मुकाबले में, तो वहाँ मुझ पर इल्हाम हुआ. इल्हाम, नींद और बेदारी के दरमियान, between sleeping and waking, semi-wakefulness state, he said, I heard, मुझे आवाज़ आई, मुझे उनको आवाज़ आई. आवाज़ क्या आई? कहते हैं कि एक आवाज़ देने वाला, एक हातिफ यानी गैबी आवाज़, जिसकी आवाज़ तो मुझे सुनाई देती थी, जिस्म नज़र ना आता था. I could hear, but not, I would not see anything. I could not see anything. वो ये कह रहा था हातिफ अल्लाह की तरफ से. अब ये बात है सुनने वाली, यहाँ से ये किताब शुरू होती है. The reason why he authored this book, असल वजह है जो सारी किताब लिखने की उनकी, ये यहाँ ये इल्हाम है. इल्हाम क्या हुआ
इल्हाम ये हुआ कि मेरे बंदे, माय सर्वेंट, अगर मैं तुझको तमाम कायनात पर मुत्तले कर दूं, इफ आई वर टू मेक यू knowledgeable about all the universe and whatever it contains. ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ। अल्लाह पाक ने यानी इल्हाम किया उन पर किसी फरिश्ते के ज़रिए, हातिफ के ज़रिए, कि मेरे बंदे अगर मैं तमाम कायनात पर तुम्हें मुत्तले कर दूँ, इफ़ आई गिव नाउ दिस कम्स, देयर कम्स द नॉलेज। जो लोग है, दोज पीपल हु से वी वांट हाई स्टेटस और विल रीच समवेयर, हमें कोई राज की बातें पता चल जाए, we know some secrets and of the heavens and earth or things like this. तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें मैं दे ही दूं ये सारा इल्म, मुत्तले कर दूं, यहाँ तक कि रेत के ज़र्रे भी की शुमार और उसके हर ज़र्रे का नाम तुम्हें बता दूं। रेत आपने देखी हुई है, सैंड, तो रेत के आपने सुना, रेत का जो ज़र्रे होते हैं, द स्मॉल पीसेस ऑफ सैंड, एटम्स वेट, इतने छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो। फरमाया कि मैं अगर उनकी तादाद तुम्हें बता दूं कि कितनी वो हैं और उसके हर एक का नाम भी बता दूं, आप देखो ना, उसका हर एक का, अल्लाह के इल्म में हर एक का नाम भी है। एवरी ड्रॉप ऑफ रेन, हर रेत का जो ज़र्रा है उसका एक नाम है। मैं अगर वो भी तुम्हें बता दूं, उनका तादाद बता दूं, और नबातात की किस्में और उनके नाम और हर एक की उम्रें बतला दूं, एंड इफ आई वर टू इन्फॉर्म यू ऑफ एंड व्हाट नबातात मीन्स दी प्लांट किंगडम, जितने नबातात हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, फूल की किस्में हैं, सब्जियों की किस्में हैं, the vegetable kingdom, the fruit, the different kinds of plant, one whole of the universe here, और उनकी किस्में, their types, their names, their ages, वो कितने हैं, ये दरख्त कितने साल का है, this plant how old is it, what's the name of it is, ये घास का पत्ता इसका नाम क्या है, ये जितने आप दुनिया में देख रहे हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अगर मैं तुम्हें ये भी बतला दूं, ये जितनी चीज़ों का बयान हो रहा है, क्योंकि कई लोग जो हैं, मैनी पीपल देयर आफ्टर, हाँ पत्थरों का पता चल जाएगी, पत्थर जो हैं ये क्या हैं, व्हाट आर दी स्टोन्स, ये जी नीला पत्थर है, ये पहनेंगे ये होगा, ये जी काला पत्थर है, ये पहनेंगे ये होगा, ये जी फिरोज़ा है, ये जी फलां है। तो वो इसमें समझते हैं, जाहिर है कुछ भाई अपने को बुजुर्गी या कोई, that they have some kind of speciality. सितारों के नाम और सितारों की उम्रें, the names of stars, उनकी उम्रें, उनकी हकीकत, the realities of stars, the movements of stars, the color of stars, the sizes of stars, उनके जो है साइज, उनकी जो जिसामत है, उनकी जो रोशनी है, वो ज़मीन से कितनी दूर है, ये बताता। अब हमारे लोग तो बताना वो क्या पता, वो तो पता ही नहीं है, गैस वर्क करके अच्छा जी ये फ़लाँ सितारा है, ये जी फ़लाँ जायचा बन रहा है, आप जो है इस साल पैदा हुए, आप स्कॉर्पियन हैं, आप जी मछली हैं, आप जी मतलब भेड़ हैं, आप जी फ़लाँ हैं, मतलब निरई हवा में जो है वो तीर, बिल्कुल ना जिसका इल्म के साथ कोई दूर दूर का अपना ताल्लुक़ नहीं। अब ये मशाइख की तालीमात हैं जो उन पर अल्लाह ने इल्हाम फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग दैट इफ़ आई वर टू इन्फॉर्म यू ऑफ नॉट guesswork, not conjecture, not that just that you are guessing, but the real names of stars, the real movements of stars, the effects of stars, the color, the distances. और फरमाया कि तुम्हें तमाम
हैवानात की किस्में और उनकी उम्रें बतला दूँ। इफ़ आई वर टू इन्फॉर्म यू, Allah subhanahu wa ta'ala said, of all of the animals, living creatures, और उनकी किस्में बता दूँ, and different categories and kinds and their ages, और तमाम वहशी जानवरों and the wild animals, और परिंदों and the birds, ईगल से लेके चिड़िया तक की किस्में, बुलबुल भी है, अबाबील भी है, बाज भी हैं, और मतलब है हुदहुद भी है, कौवे भी हैं, कबूतर, और कितने परिंदे, दे मैनी 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 बर्ड्स. If I were to inform you of all the birds, you are interested, yes, I am going to tell you about birds. I got wonderful knowledge. फरमाया कि वो भी तुम्हें बता दूं, और ज़मीन पर चलने वाले हशरातुल अर्द, हशरातुल अर्द कहते हैं ये कीड़े मकोड़े, एंट्स, स्नेल्स, ये जो इंसेक्ट्स, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, फरमाया कि और भी जितने सांप हैं, बिच्छू हैं, दिस स्कॉर्पियन, दिस स्नेक्स, मछलियाँ हैं, पानी में मछलियाँ हैं, उनकी किस्में, उनकी उम्रें, द रियलिटीज ऑफ फिश, डिफरेंट देयर काइंड, एम्फीबियंस, उनके अलावा ज़मीन पर चलने वाले तमाम जानवरों का नस्ब और उनकी असल बता दो. इफ आई वर टू इन्फॉर्म यू ऑफ द all of the animals which walk on the earth and their even a region where they originated from. ये साइंसदान अभी भी गैस कर रहे हैं ना जी इवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुई. Today they were telling in the news they've discovered something very old in the universe which came into existence after 7 million years, and now they'll know more about the region of the universe. वो अभी भी देखिए साइंसदान कह रहे हैं कि हमें अभी और पता चलेगा, we'll know more about the universe. वो आज ही कोई अभी पिछले दिनों यूरोपियन scientists they discovered something which was, they say, which came into existence after the Big Bang 7 million years. 70 लाख साल बाद वो चीज़ पैदा हुई. तो ये कहते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि 70 लाख साल पहले क्या हुआ इसकी वजह से. मीनिंग स्टिल दे आर ट्राइंग. अभी इतना इल्म कम है उनके पास. Although actually it seems like that कि माँ महदी आ जाएंगे, क़यामत आ जाएगी, अभी भी डिस्कवरी नहीं होगी कि उसकी असल क्या थी. ये तो साइंस का इल्म है. तो अल्लाह पाक ये यानी ये गोया समझे कि जी साइंसदानों को जितना इल्म है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन दिस इल्हाम इज सेइंग दैट इवन इफ एवरीथिंग वाज ओपन फॉर यू, all the stars, all the animals, all the things. Science तो भी डिस्कवर कर रही है ना. They don't know what's this organ doing, what's this animal. Still research is going on all fronts. बैक्टीरिया पे रिसर्च हो रही है, दूसरी चीज़ों पे रिसर्च हो रही है, माइक्रोबायोलॉजी हो रही है, ये है वो है. Still, but here in this ilham is saying that even if they were to have all the knowledge, the reality of these things, परिंदों की, आसमान की, ज़मीन की, और फिर फरमाया कि और आसमानों और ज़मीनों के अजायबात तुम्हें दिखा दूँ. And if I were to show you the wonders of the heavens, the skies and the earth, the 7 earth, the planets, यहाँ आप देखते हैं वो सितारा पता नहीं क्या है, वो भी आपको पता चल जाए. This wonders of stars, कहाँ कहाँ जिंदगी है, where does life exist in the universe, if you even knew that there is millions other creation living in different planets. है ये तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं. दी अहले दीवान औलिया जैसे गौस कुतुब अब्दाल, ये तो वो कायनात के दूसरी सरों में जा अपना जगह. उन्होंने ये साइंसदान तो भी अंदाज़ा कर रहे हैं, वो जाके वो उनकी नज़रों के सामने है वो चीज़ें भी, वो क्रिएशन भी जो लिव कर रही है दूसरी दूर दूर सितारों और गैलेक्सीज में. द साइंटिस्ट नेवर आर एबल टू ट्रैवल सो फार, स्पीड ऑफ लाइट, वो कहाँ से ट्रैवल करेंगे. लेकिन ये रूह में ये ताकत है. वली को अल्लाह ने, जो बड़े दर्जे के वली हैं, वो उनको ताकत अल्लाह ने दी हुई.
कि वो हो भी, यानी ये तो सोच रहे वो हो भी आए या देख भी आए, अभी भी उनको पता हो। बहरहाल दिस इज समथिंग एल्स। तो वो फरमाया कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अजायबात, that I were to reveal upon you the secrets, the wonders of heavens, skies and the earth, सितारे, सूरज, सारी चीज़ें, ओ जन्नत और दोज़ख, इवन पैराडाइज, इफ आई वर टू शो यू पैराडाइज, दो अब नई बात, अभी तो हम दुनिया की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दुनिया यार। अल्लाह पाक फरमाने अभी अगर तुम्हें मैं जन्नत भी तुम्हें दिखा दूं, 8 जन्नतें जो हैं, जन्नत के दरवाजे जो हैं, और जन्नतें जो उनके महल्लात, उनकी हूरें, उनकी खूबसूरतियाँ, और जन्नत की नहरें, जन्नत के खाने, द थिंग्स इन द जन्नत, और दोज़ख और जो कुछ उनमें ज़ाहिर और पशीदा है, सब तुझ पर मुनकशिफ कर दूं। इफ आई वर टू रिवील अपन यू, एक्सपोज टू यू whatever is contained in Jannah, hidden or apparent, or in the hell, hidden and apparent in the hell. जहन्नम के फरिश्ते, जहन्नम के अजाब, जहन्नम के दर्जात, क्यों को किस मकाम में कौन क्यों जाएगा, जन्नत के दरवाजे, जन्नत के दर्जात, वेयर हूरें, महल्लात, और whatever is hidden in the जन्नत। देखना हमें तो पता ही नहीं, ऐसी चीज़ें भी हैं human beings have never thought about it, human beings have never seen, human beings have never heard, but even if those things were revealed, यहाँ ये बात है अगर वो भी चीज़ें तुम्हें दिखा दी जाए, और तेरी दुआ से, ये तो हो गया ना कि भाई पहले दुनिया अल्लाह पाक ने जिक्र किया, भाई दुनिया की चीज़ें तुम्हें दिखा दी जाएं, which were revealed अपने एनिमल्स, ये है तारे, पत्थर, उनकी रियलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। देन Allah subhanahu wa ta'ala about animals, the birds kingdom, and then the Jannah and hell, paradise and hell, जन्नत और दोज़ख मुनकशिफ कर दूं, और तीसरी कि तुम्हें कुछ ताकतें ऐसी दूं, तेरी दुआ से बारिश नाजिल कर दूं, तुम्हें ऐसी ताकत तुम्हें हो कि तुम दुआ कर, तुम हाथ उठाओ, बारिश होना शुरू हो जाए। You have to actually raise your hand, the rain will come. तेरे हाथों से मुर्दा जिंदा कर दूं, that you would have been able to, by the permission of Allah, raise the dead, मुर्दा जिंदा हो जाए, बीमार ठीक हो जाए, अंधे देखना शुरू कर दें, लूले चलना शुरू कर दें, वो लूले लगड़े जो है वो चलने से, the disabled are able to walk, the foolish are able to think, the insane become sane, the dead become living, you have such powers, the blind see। ऐसी ताकतें तुम्हें मिल जाए, ऐसा इल्म तुम्हें मिल जाए दुनिया के बारे में, और ऐसा तुम्हें आखिरत के बारे में मिल जाए, और जिस कदर करामतें मैंने अपने वलियों को अता किए सब तेरे हाथ पर जाहिर कर दूं। And if I were to manifest all those karamas which I have given to awliya Allah only to you, तुम्हें दे दूं, तो इन सब बातों से मेरी बंदगी के किसी एक दर्जा पर भी तू नहीं पहुंचेगा। From all, in spite of all of these things, you would have not got 1 degree closer to me and being a servant to me. हमारी तो कहानी सारी यहाँ खत्म हो जाती है, हमारे लोग तो लगे ही इन चीज़ों के पीछे। And our people are mostly, even those who come towards the tasawwuf and religiosity and actually religion, and they want to be spiritual, they are even after these things, ऐसा कोई हो जाए जी, कोई करामत हो जाए जी, कोई मुर्दा जिंदा हो जाए, वो फरमा रहे हैं कि मुर्दा जिंदा हो जाए, आपका दर्जा तो बुलंद नहीं हो, आपको तो अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल सकता। And really, this is true. We can also find in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when the Dajjal will come, he will ask the sky to send rain, the rain will come. He will ask the dead to become living, a dead person will become alive. He will ask the earth to actually bring forth its treasures, and the earth will bring its treasures. He will ask the earth to bring crops, और crops जो है वो उसके निकलेंगे। तो आप फरमा रहे हैं
कि मुझ पर ये इल्हाम हुआ कि मेरी अब्दियत के किसी दर्जा पर नहीं पहुँचेगा। मतलब ये है कि बड़े बड़े मकामात की हवस ना करनी चाहिए, बल्कि अब्दियत कामिला, द कंप्लीट, द परफेक्ट सर्वेंट हुड इज, कोशिश करनी चाहिए कि टू बिकम अ सर्वेंट, एंड दैट इज़ द ग्रेटेस्ट और यू मे से स्टेशन फॉर अस, बिकॉज दैट इज़ आवर रियलिटी। अगर बंदगी करते हुए, बंदा अपने आप को समझते हुए वो कोई अमल करेगा, मसलन वो टैलेंट में भी जाता है अपने आप को बंदा समझ के, आजिज़ समझ के, सुन्नत के मुताबिक, तो उसने बंदगी का दर्जा तय किया। ही हैज़ एक्चुअली हिज डिग्री हैज़ बिकम क्लोजर टू अल्लाह। अब ये तो मशाइख समझा समझा के हमारे लोग फिर इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ जाए। जिसको देख लिया कोई डुगडुगी लेके बैठा हुआ है सामने से, मैं आपको बताता हूँ तारे क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ पत्थर कौन सा अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट नंबर इज़ लकी फॉर यू, मैं आपको बताता, आई विल टेल यू व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू। And Allah subhanahu wa ta'ala here in this ilham is saying that even if everything, all the things which have been mentioned as given to you, you are not going to draw closer to me with those things. These things never draw you closer to Allah subhanahu wa ta'ala by merely these things. These things are powers, knowledge about creation, which Allah subhanahu wa ta'ala can give to anyone. Even the Dajjal will be given some of it. Even Shaitan have some of it. And sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, obviously angels have this, even animals, they see the akhirah, meaning the punishment in the grave. Rasulullah said that animals, for them it is revealed whatever is in the grave. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को कश्फ़े कबूर यानी उनको अज़ाब कब्र नज़र आता है, तो जो गधा है उसको तो अज़ाब कब्र नज़र आ रहा है, उसका दर्जा को गधा गधा ही है, उसका दर्जा बुलंद तो नहीं हो गया उससे। तो इन चीज़ों से बंदे का दर्जा नहीं बुलंद होता, दर्जा बुलंद होता है अब्दियत, टू बिकम अ ट्रू सर्वेंट, to become a true servant to Allah subhanahu wa ta'ala. And which was the perfect servant? It was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So to act like him, that's where the secret lies. That's where the status lies. That's where the true servanthood lies, just to copy him. That is why our Mashayikh have named the tariq, our tariqah Muhammadiyah, because Prophet sallallahu alaihi wasallam is the embodiment of the perfect servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Aap al-Islam अब्दियत कामिला के नमूना है, जो उनके पीछे चल पड़ा वो बंदा। तो वो फरमाते हैं कि जब ये कलाम ख़त्म हुआ, आई वॉज वेरी अपसेट बिफोर दैट, डिप्रेस्ड, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे रंग नूर नहीं नज़र आ रहा, तुम्हें जिक्र कर रहे हैं नूर नहीं नज़र आ रहा, जिक्र कर रहे हैं सुकून नहीं मिल रहा, ये बीमारियाँ आ रही हैं, ये हो गया वो हो गया। कहते जब ये इल्हाम ख़त्म हुआ, हातिफ ने ये कलाम पूरा भी ना किया, मेरे दिल में मकामात औलिया में से किसी मुकाम की भी दुनिया में हासिल होने की हवस ना रही। He said that and when this conversation or this ilham finished, the desire which I had of the high stations and karamat and things, it actually vanished away from myself. वो सारी गायब हो गई। तो पता चला कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ये मिल भी गई सब कुछ, फिर भी तुम मेरे करीब नहीं हो सके, तो मुझे क्या फ़ायदा उन चीज़ों का, वो ना दुनिया में ना आखिरत में। तो मैंने शुक्र के साथ अल्लाह ताला की इस पर हम्द व सना की। आई थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन दिस। फिर वो फरमाते हैं कि अब दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द बुक। फरमाते अब मैं चाहता हूँ कि इस इल्हाम की हकीकत पर कलाम करूँ और अपने मशाइख में से बाज़ आरिफीन के कलाम से अपने बयान को आरास्ता करूँ और इसके तफसील के साथ गुफ्तगू करूँ। He said, now I intend to comment and mention details of this ilham. ये जितनी बातें मैंने की ना, ये असल चीज़ है इसकी। वो फरमाते हैं अब मैं आगे इसकी तशरीह करूँगा। ये सारी जो दूसरी किताब है ये उसी की शरह है, what it means for you. Then he divided the book into 3 categories, and like there are 3 things mentioned there, he divided into 3. And a person who understands this, that's why he's named the book the Adabul Abudiyya. Adabul Abudiyya, the etiquettes to be a servant of Allah. कि किस तरह बंदा बंदा बने, बंदा अल्लाह का बंदा बन सकता है,
क्योंकि आखिरी मुकाम जो अल्लाह पाक देते हैं ना बंदे वली को भी, वो अब्दियत होती है, कामिला अब्द। आप देख रहे हैं कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला said some people have नफ्स उमारा, some have नफ्स मुल्हिमा, some there is नफ्स लवामा, then there is an higher level नफ्स या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। सबसे आगे नफ्स जो है दूसरे जिनसे पहले बयान किया, द सीरीन सोल, नफ्स मुतमइन्ना बड़ी ऊंची चीज है, उसको अल्लाह पाक कहते इरजिई इला रब्बिक, लौट चलो, रिटर्न टू योर लॉर्ड। ये बड़ा मुकाम है नफ्स मुतमइन्ना। देखिए अल्लाह वापस आओ, अल्लाह की तरफ चलो, तुम नफ्स मुतमइन्ना हो, यानी यू आर दी सीरीन सेटिस्फाइड, इत्मीनान, नेकी के साथ इत्मीनान पकड़ गए हो। यू हैव बिकम सेटिस्फाइड with the will of Allah, with the commands of Allah. Fadkhuli radiyatam mardiya, Allah is pleased with you, you are pleased with Allah. और उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, फदखुली फी इबादी, अब तुम मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। अल्लाह का बंदा बनना आसान नहीं। फदखुली फी इबादी, नाउ यू एंटर द रियल्म ऑफ माय स्पेशल सर्वेंट। वदखुली जन्नती, अब तुम मेरे कुर्ब की, मेरी रजा की जन्नत में दाखिल हो जाओ। So that is why when Prophet ﷺ was taken to Mi'raj, which was one of the highest point in his life, so what did Allah subhanahu wa ta'ala call him? Subhanalladhi asra bi abdihi, कि पाक है वो ज़ात जो लेगी अपने बंदे को, सैर कराई जिसने अपने बंदे को, अब्दी से चला हुआ। हम उससे भागते, हम खुदा बनना चाहते हैं, ये सारा मसला गड़बड़ हो जाता है। So how to become a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, this inshallah we are going to discuss some of the detail, but in easy way आप सोचें, ये जो तरीका मोहम्मदिया है, ये बंदे को बंदा बनाता है। From the very beginning to the fourth stage, it makes you a servant of Allah. आपके हाथ पाँव, पहले हाथ को बंदा बनाता है, जुबान को बंदा बना, it makes you a tongue servant of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says, if your tongue is slave to Allah, it won't speak. Does Allah subhanahu wa ta'ala's tongue speak lie? No. Swear? No. तो अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा जब मेरे करीब होता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, I become his tongue. तो अब उसकी जिसकी, या तो फिर वो अल्लाह का वली नहीं है जो गाली दे रहा है, और या फिर जो है वो नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह पाक नाउज़ुबिल्लाह गाली देता है, फिर ऐसे तो वाक़ है ही नहीं, और या ये वली नहीं है, मतलब ये यही नहीं है, ने धोखा रचाया हुआ है। तो असल तो तरीका मोहम्मदिया बंदा को बंदगी, पहले ज़ुबान को बंदा बनाता है, आँख को बंदा बनाता है, आहिस्ता आहिस्ता दिल को, सारा को, बट देयर आर सम डिटेल, फिर धोखे भी है इस रास्ते में। पीपल ऑफ नॉलेज, शैतान उनको भी गुमराह करता है, द पीपल ऑफ नॉलेज एंड द पीपल हु आर लाइक ट्रैवलिंग द पाथ टू अल्लाह, जो तसव्वुफ और तरीक़त की मंजिलें तय, उनको भी गुमराह। उसने उनका बयान है इस किताब में, हाउ दे आर डिसीव, शैतान कौन से हथियार इस्तेमाल करता है। एंड ही यूजेस दीज वेपन्स, किसी को परिंदों के पीछे लगा दिया, किसी को सितारों के पीछे, किसी को पत्थरों के पीछे, कोई फाल निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गिद्दड़ सिंगी निकाल रहा है, कोई कह रहा है जी मैं ये जानता हूँ, कोई वो जानता हूँ। तो जब जिस बंदे को ये पता चल गया भाई जो असल औलिया अल्लाह, वो कह गया इन चीज़ों में कोई बंदगी नहीं है, बल्कि ये तो खुद चीज़ें वो हैं जो अल्लाह की ये इल्म में है ये चीज़ें, और अल्लाह दे दे किसी को तो उसमें उसकी बुजुर्गी कोई नहीं, वो तो अल्लाह की खूबी किसी ने अल्लाह को दे दी। हमारी खूबी तो यह है कि हम अपनी बंदगी, आजिज़ी, इनकिसारी हम शो करें, दैट इज़। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू, हम इसको फिर जारी रखेंगे, ये ख़त्म करेंगे किताब इंशाल्लाह, क्योंकि ये इसी की तफसील है। ये बंदे को समझ आए, ये बंदा बहुत सारे धोखों से बच जाता है। अ पर्सन इज सेव फ्रॉम मैनी डिसेप्शन ऑफ शैतान and also nafs as well. Otherwise you'll be confused. अब जिस बंदे को ये समझ आ जाए, वो जिक्र कर रहा है, उसको ना मज़े से गर्ज है, ना कश्फ से, ना करामत से, ना लोगों की इज्जत से। he is not concerned people respect him or not, or he knows whatever he knows the unseen or not, he is not concerned with that, because he says I am a servant, my job is to just to serve Allah,
as far as I'm doing that, I'm happy. And how to serve Allah? I just copy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And because if I don't know how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lived, then you see any of the awliya and salihin, and you try to at least copy them. तो किसी नेक बंदे तक पहले पहुंचे, उसके बाद जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंचेगा. तो इंशाल्लाह इसको जो है जारी रखेंगे. आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, वरना फिर ख़त्म करते हैं. अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह. ये कोई सवाल करना है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि. Brother is asking about the dream, that if a person sees a good or bad dream, is it best to just to leave it to Allah subhanahu wa ta'ala and not to share with anyone or not? The guideline of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam is on these matters, that if you see anything bad, you must not share with anyone. जो हदायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो ये कि अगर तो बुरी ख्वाब देखी है, शैतानी ख्वाब देखी है, डरानी ख्वाब है, वो शेयर ही ना करो, वो ना बताओ किसी को. लीव इट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दैट इज व्हाट यू शुड डू. अच्छी ख्वाब देखो. इफ यू सी गुड ड्रीम, you can share it with people. With whom? Two type of people. One is people who know the knowledge of ilm ta'bir. For example, you ask them to learn about the dream. Second is the people who love you, who like you, who you know in your estimation they like you. जो लोग आपको पसंद करते हैं, your friends, family, आपको पता ही है वो लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, उनको बता दे बंदा, तो फिर कोई ख़तरा नहीं इंशाल्लाह. तो ये गाइडलाइन है कि भाई अच्छी ख्वाब है या इल्म वाले बंदे को बताओ या फिर अपने किसी जो मोहब्बत करता है आपसे. तो ये अदाब है. एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल किया था. One person asked very good question on this topic. He said that if I am not to make any of these things which I had in mind first, like Ma Abdul Wahab Sharani being a wali had these things in his mind, why our normal people would not have? आप किसी को कहो तो मैं तुम्हें अमल सिखाता हूँ, चूहों को किस तरह काबू करो, कि अच्छा सिखा दो, चलो कुछ इल्म ही है ना, अच्छा है. यानी लोग तो दिलचस्पी रखते हैं आपको एक कोई ख़ास खाते हैं, लोगों किस तरह काबू करना है, पीपल गो, तो मीनिंग पीपल गो आफ्टर दीज थिंग्स. So he said that I also had these things in my mind. If someone get the power to raise the dead, तो वो तो कहे मुझे दे दो, मैं मुर्दा जिंदा कर लोगों को बताऊंगा देखो मेरा दर्द. But reality is सबसे ज़्यादा मुर्दे or actually the miracles of this nature were given to Sayyidina Isa alayhi salam. सबसे ज़्यादा मुर्दे उन्होंने ज़िंदा किए, उनका मौजज़ा ख़ास. और भी अम्बिया अलैहिस्सलाम है, औलिया अल्लाह है जो गौस है वक्त का, उसको भी ये चीज़ें हासिल. ऐसे मत समझे कि उम्मत मोहम्मदी के औलिया अल्लाह को
ये जो उसको तमाम करामात और औलिया अल्लाह और अम्बिया के जो मौजज़ात बाद दफ़ा ज़ाहिर हुए, वो उनके मुर्दे ज़िंदा करने को अल्लाह ने उनको दी हुई है ये चीज़, लेकिन वो उनका पर्दा पड़ा हुआ, वो नहीं अपना दिखाते। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए, वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे अलैहिस्सलाम। तो अम्बिया में से इन्होंने मुर्दे जिंदा ही में डेड अलाइव। हमारे लोग कहते हैं हज़रत साहब को करामत दिखाओ, लोग पीछे लोग जो है ना मान जाएंगे, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह। सबसे ज़्यादा कराम मोजज़ात, अंधों को नज़र आना, ब्लाइंड वर सीइंग, अदर पीपल वर वॉकिंग, डिसेबल्ड वर वॉकिंग, डेड वाज बिकमिंग अलाइव। ये रियलिटी है, यही हकीकत है। और सबसे ज़्यादा मुखालफत आपकी की है लोगों ने अम्बिया में से, इतनी कि आपको शहीद ही करें, अल्लाह को फिर ऊपर उठा लिया अल्लाह ने, वरना उनके तो पाँव चूमने थे ही ना सबको, जो मुर्दा जिंदा कर रहा था। You think normally that if person is making dead alive, the blind see, all people, the Roman Empire, the kings, the other people, no matter they believe in him as a prophet, but they should have respected him and honored him. जी ये हजरत तो ऐसे है, चलो हम मानते हैं नहीं मानते, मुर्दा तो जिंदा कर देते ना भाई, इनसे बच के रहो। उनको उतना उन्होंने तंग किया कि अल्लाह को करना पड़ी, इंटरफियर करना पड़ा उनके मामले में कि जिंदा उठाने के लिए, वरना वो तो शहीद कर चुके थे अपनी तरफ से। अभी भी वो कहते हैं हमने शहीद कर दिया। तो ये लोगों की गलत फहमी है। जिसने अल्लाह के दीन की तरफ आना है, उसने आपका मैसेज देने से आना, मैसेज सुन के आना है। अब कितने लोगों, मैं अब बता सकता हूँ, उनको कश्फ भी हो गया, वो फिर भी दीन से दूर ही बैठे, और दूसरे लोग अपने दीन, ये असल लोग हैं जो अमल कर रहे हैं, जो मैसेज पे अमल कर रहे हैं। दे आर रियल पीपल, रियल सर्वेंट। वो तो कश्फ के बंदे हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा फिर वो भाग जाएंगे, या होते हुए भी भाग जाएंगे, वो कहेंगे हमें तो कोई चीज़ मिल गई। इसी तरह एक बुज़ुर्ग की कहानी आती है, द स्टोरी ऑफ अ बुज़ुर्ग, हज़रत सईद अबू सईद खैर, समथिंग लाइक दैट, रहमतुल्लाह अलैह। वो बुज़ुर्ग जो थे, वो जा रहे थे, ही वाज ट्रैवलिंग, वो सफ़र कर रहे थे, ही वाज ट्रैवलिंग। तो मरीद ने कहा कि हज़रत कोई करामत दिखाएं, लोग आपकी भी कोई इज़्ज़त करें, कोई हमारी भी कोई इज़्ज़त हो। भाई कुछ बात नहीं सुनते, दे डोंट लिसन, दे कुछ अपना चीज़ कोई दिखाएं, कोई दुआ करें, सो दैट दे बिकम इम्प्रेस्ड। वो देख ली तो वो साथ लग जाएंगे, जैसे आम लोग बंदे ज़हन में। मैंने अभी कुरान की मिसाल दे दी आपको कि ईसा अलैहि सबसे ज़्यादा मौजज़ात बड़े बड़े दिखाए, उनकी सबसे ज़्यादा मुखालफत हुई। इस तरह नहीं लोग मानेंगे। उन्होंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, इस तरह नहीं लोग आते। नोर इट इज़ आवर पर्पस टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड्स अस, वी कन्वे द मैसेज, दे एक्सेप्ट और नॉट, इट्स अप टू देम। हम पैगाम दे देंगे, वो माने ना माने, हमारा काम है पैगाम देते रहना। उन्होंने कहा हजरत कोई चिड़िया ही जिंदा कर दें, मुर्दा नहीं जिंदा होता, बंदा नहीं, कोई चिड़िया ही जिंदा कर दो। वो बुजुर्ग बैठे थे, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भाई ये कहें अहमक लोग हैं मेरे मुरीदीन, जो है भाई ऐसी डिमांड करते हैं लोग कर। एक बुजुर्ग थे, वो तो कहने लगे अपने मरीदों से तंग होके, वो कहने लगे लगता है कि दुनिया का जो बेवकूफ़ है वो मेरी किस्मत में लिखा हुआ। दुनिया का भाई जो सीधा सादा, जिसको कोई होश नहीं, बस वो मेरी किस्मत में लिखा है। नहीं वो ऐसी बातें करते हैं बाद दफ़ा लोग। तो ये भी सफ़र में थे, दी जर्नी। तो पीपल वर गैदर्ड अराउंड, तो वहाँ दरख्त के नीचे बैठे, तो वहाँ चिड़िया एक मरी हुई पड़ी हुई थी, अ बर्ड लाइंग डेड। एक चिड़िया मरी हुई पड़ी हुई। तो वो कहने लगे मरीद, हज़रत साहब मौका बड़ा है, ये तो खुद बहुत मरी पड़ी है, मारनी भी नहीं पड़ी। आपने फरमाया, लोग भी और थे, अदर पीपल वर देयर, आपने फरमाया उसको लाओ। वो लाए। मैंने बताया भी औलिया अल्लाह के पास बाज़ औलिया अल्लाह को अल्लाह ने दी होती ताकत, वो नहीं इस्तेमाल करते, उनको पता होता है कुछ भी नहीं होना।
बल्कि और लोग ज़िद्दी हो जाते हैं, दे बिकम इवन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही शोड मिरेकल्स दे सेड ही इज़ अ मैजिशियन। जब आपने चांद भी दो, इससे तो बड़ा मौजज़ा नहीं हो सकता, चांद दो टुकड़े हो, इससे बड़ा मौजज़ा क्या है कि चांद कलमा पड़े। फिर भी अबू जहल अबू लहब कह ये तो जादू है, तो इतना ये तो इतने बड़े जादू करे, नाउज़ुबिल्लाह जी, कोई चांद पर कर दिया। सो वो लाई चिड़िया, उन्होंने दुआ की, अल्लाह तू ही ने इसको पैदा किया है, अपने हुक्म से इसको ज़िंदा फरमा। तूने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए किया, वो मिट्टी की चिड़ियाँ बना के, ईसा अलैहिस्सलाम यूज्ड टू मेक क्ले into birds and used to blow and they used to fly away. People didn't believe in him. There were few believers of his. आपने दुआ की, वो चिड़िया से फुर करके उड़ गई। There it goes, सब देख रहे हैं। अब तो जी जैसे आम लोग भेड़ चाल होती है, पीपल जस्ट फॉलो द क्राउड। अब लोग आ रहे हैं जी, चिड़िया जिंदा हो गई, बड़ी बड़ी हस्ती है जी, ये है वो है। इतना वो पैगाम फैला, सच न्यूज़, नॉर्मल पीपल ये इस तरह की खबरें जो इस तरह की सही हूँ या गलत हो, इस तरह के पीछे बहुत जाते हैं। अजी फ़लाँ जगह पे पिछले जब पाकिस्तान में जी कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम जो है वो ज़ाहिर हुआ। अब इन्हीं अक्ल के अंधों को इतनी खबर नहीं भी, वो 9 फुट 6 फुट वो निशान है आप अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक, या जो नलैन शरीफ अभी भी मौजूद है, वो नहीं 10 नहीं तो 12 नंबर है। अब वो इस टेबल जितना है, वो सारा पाकिस्तान जो है वो वहाँ जा रहा है, जाके फिर बाद में पता चला भाई वो फ्रॉड है, धोखा है, वो झूठ बोल रहे हैं लोग या कोई और चीज़ है। वो पता नहीं चूल्हे या देग पे क्या चावल पका रहे थे, वो एक किस्म का चूल्हा होता है, वो उसकी शेप बनी हुई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये इस तरह की चीज़ें, पर सही भी हूँ, स्टिल पीपल एक्चुअली दे वोंट कम, इफ दे कम ओनली फ्यू। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली, यानी अल्लाह ने निकाली उनके लिए, इतना बड़ा मौजज़ा पहाड़ से, फ्रॉम द माउंटेन। एक बंदा देख के ईमान ले आया, सिर्फ एक बंदा, लाखों में से एक बंदा ईमान ले आया। आप समझे हज़ारों लोग ले आए होंगे, नहीं। और वो भी वो था जिसने डिमांड नहीं किए थे मौजज़ा, वो वैसे कोई चलता फिरता आया, ये क्या हो रहा है, क्यों लोग कटे हैं। तो कहा जी कोई ये एक बंदा कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, दूसरे कहते हैं नहीं है, उसने ये मौजज़ा, उसने कहा भाई यार बात है, फिर तो वो नबी है। और जो डिमांड कर रहे थे जी आप हमारे लिए करें वो कोई, तो ये बुज़ुर्ग थे, वो जो चिड़िया फुर करके उड़ गई तो लोग जो है इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट डे देयर वर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल विद द शेख एंड विद द पीपल। और जो मरीदीन थे जो 40-50, कहने हज़रत साहब देखा ना, हमने कहा कितना फ़ायदा हुआ, अब हज़ारों लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हमें अलविदा करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू, दे आर गिविंग अस प्रोटोकॉल, हमें फेयरवेल करने जा रहे हैं आगे तक। वो क्या हुआ, चलते चलते बुज़ुर्गों की हवा खारिज हो गई। वो जो बुज़ुर्ग थे वो जानबूझ के खैर उन्होंने किया, दे एक्चुअली डिड इट इंटेंशनली, दे रिलीज्ड विंड, आवाज़ आई। अब आम लोग हैं, इनको नहीं पता भाई वलायत जो है ये सुन्नत पे चलने का या गुनाह छोड़ने का नाम है। ये कोई बीमार हो जाए बंदा या कोई किसी पेशाब कर रहा है, भाई इसका कोई वलायत के साथ कोई, या बाज़ार में सौदा ले रहा है, इसके साथ कोई तल्लक नहीं। कई लोग बेइज्जती समझ में लिखा है इस किताब में कि कई उलमा, कई जो सूफिया अपने आप को कहते हैं बाज़ार से सौदा नहीं लेने जाते, जी हमारी बेइज्जती है, करमा लिए तू लिया, मैं वो किधर उत्थे जावें आलू चुके हो गली मनु बंदे की आख। मीनिंग they thought that they are even higher than Anbiya alayhi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself would go to market and would actually, why he wouldn't consider himself that he is high, that he, for that reason Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. So Imam Sharani rahmatullah in this book has exposed these type of people who have made like a false pretension, एक ड्रामा सा रचाया हुआ है कि भाई एक लबादा उड़ा हुआ है कि हम काम नहीं करेंगे। जैसे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपको टैक्सी सूट नहीं करती, भाई आपका दर्जा होगा बड़ा, हमारा तो भाई ये है, हम तो समझ ये भी बड़ी नेमत है जो है अपना काम कर रहे हैं। तो लोग भाई ये बुरा भला कहते हैं, भाई वो तो जो अपनी इज्जत इतनी समझे भाई वो बुरा भला कहने काबिल नहीं वो होगा। तो बहरहाल अपना अपना एक मिजाज होता है। सो ही रिलीज्ड विन, उनकी हवा खारिज होगी बुजुर्गों की। वो जो हज़ारों लोग थे ना, हवा पंजाबी में कहते हैं हवा टुर पी,
यानी तो जब वाह टूरी तो वो भी टूट गए सारे। वो जितने आए थे उन्होंने कहा दो जी ये केड़ी बुजुर्गी है, व्हाट इज़ दिस, का ये कोई बुजुर्गी है? अपना देखो जी उनकी हवा खारिज हो गई है। अब ये नहीं पता ये कोई गुनाह हो गया है भाई, उन्होंने कोई कत्ल कर दिया है, किसी को गलत गीबत की है, चुगली की है, भाई ये काम जिस्मानी चीज़ है, कोई युवा पेशाब आया है, कोई नहीं इसमें हर्ज, बंदे के इख्तियार की चीज़ तो नहीं, इंसान है। तो अब वही वो 30-40 जो थे, अब उनके जो मुंह और बूथियां थी वो देखने वाली थी। अब वो बैठे मुंह लटका के कि वो तो चले गए साहब वो जो आए थे। तो बुज़ुर्गों ने फरमाया कि देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये दुनिया फुर की तरह, यानी टुर की तरह, फुर की तरह आती है और टर की तरह चली जाती है। फुर हुई तो ये आ गई, और टुर हुई, वाह टूरी तो ये टूर गई। तो तुम इस दुनिया के लिए अमल ना करो, डोंट एक्चुअली प्रैक्टिस एंड डोंट डू अमल फॉर दिस दुनिया। They will never be happy with you. They will be sometimes pleased with you for futile things, and they will just actually turn their moods off, or they will leave you for nothing. भाई इनका कोई बार एतबार नहीं है भाई, अपना कब ये आ जाए कब ये चले जाएं। इसलिए आप सीधा साधा काम करें भाई, सुन्नत की इत्तिबा और मैसेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह का देते जाएं। जो मान गया उसकी खुशकिस्मती, जो नहीं माना आपकी गरज नहीं, यू हैव नथिंग टू डू विद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गोइंग टू आस्क हिम। तो इस तरह औलिया अल्लाह जो बड़े दर्जे के इमाम शरानी रहमतुल्लाह अलैहि, और इस तरह ये शाज़लिया, ख़ासतौर पर शाज़लिया जो मशाइख हैं, शेख अबुल हसन शाज़ली और शेख अब्दुस्सलाम बिन मशीश, ये इन्होंने तालीम दी विच वाज क्लोजर टू द सुन्ना ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो दैट्स वाई इनका जो तरीके पे चलने वाला बंदा वो बड़ा मुतमईन रहता है। ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड, ही इज़ नॉट आफ्टर anything like this, and what he is after is the Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure. तो क्वेश्चन जो किया उस बंदे ने, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन जो अच्छा उसने किया वो ये कि उसने कहा अगर मैं ये सारी चीज़ें मैंने अपने दिल से निकाल दी, आई अबंडन दीज थिंग्स नाउ, आई डोंट वांट दीज थिंग्स, इफ आई डोंट वांट दीज थिंग्स, नो दुनिया, about akhirah and the status and the high ranking of awliya, kutabiyat, ghosiyat, for example, I say I don't want, then I have no motivation. तो फिर मेरे पास फिर मैं अमल किसके लिए करूं? तो फिर मुझे क्या चीज़ शौक दिलाएगी? पहले होते हैं ना, ये हो जाए, ये करामत मिल जाए, ये कश्फ हो जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो अब जो है आपने कहा ये सारी चीज़ें से अल्लाह को तो नहीं मिलता, तो अब मैं फिर जो है किस लिए करूं? वाई शुड आई डू, वट विल बी माई मोटिव, वट शुड बी देन माई मोटिवेशन, मेरी मोटिवेशन फिर क्या हो, मेरी गरज क्या हो, मैं किस बुनियाद पे फिर अपना नेक बनूं, बुराई से बचूं और ज़िंदगी में जो है यानी मुजाहिदा करूं, मैं फिर कैसे करूं, मुझे क्या मिलेगा? तो उन्होंने फरमाया, ही आंसर्ड, वट यू विल गेट इज द डिफरेंस इज ऑन वन साइड इट इज़ द एनिमल, the birds which we told you, and the stars and the stones and the jannat and the hoods and things, all these things. One is this motivation, and on one side it is Allah subhanahu wa ta'ala alone. Now you tell me what is the biggest motivation, what to do? Who is more valuable? Which side is more heavier and valuable and more beautiful and is more treasurable and more of good? मैं सारी ये जितनी चीज़ें हैं ये एक तरफ हूँ, तुम कहते हो मैं अब फिर क्या क्यों हूँ, मैं किसके लिए फिर करूँ, मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा सबको एक तरफ रख दो, एक तरफ अल्लाह की ज़ात अकेली है, बताओ कोई मुकाबला है इसका और अल्लाह का? नहीं, फरमाया इसलिए तुम उसके लिए करो कि वो मिले, को अल्लाह मिल गया, दूसरे को दूसरी चीज़ें मिल गई, कोई मुकाबला ही नहीं है कि जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। लाइक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह सेड, इफ़ यू फाउंड अल्लाह you found everything. If you lost Allah subhanahu wa ta'ala's closeness, you lost everything. मैं अगर अल्लाह मिल गया, अल्लाह को तुमने पा लिया तो सब कुछ पा लिया, because Allah can bring everything to you. और अल्लाह को तुमने ना पाया, खो दिया तो सब कुछ खो दिया, because even all the world get together
वो आपको ज़िंदगी नहीं दे सकते, सेहत नहीं दे सकते, जवानी नहीं दे सकते, नहीं कर सकते। सारी दुनिया फरिश्ते भी साथ मिल जाएं। तो इसलिए जो है यही ज़्यादा जो है वो अक़ल के भी करीब है कि इस नीयत के साथ करनी है। दुनियावी मिसाल, वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लें, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी हैं, तो एक बीवी है वो खामंद की इज़्ज़त करती है इसलिए कि भाई उसके पास पैसा है, दौलत है, तो ठीक है। वो बाद में अगर उसको मिल भी जाए, खामंद नहीं मिला, तो वो उसने खो दिया, वो कितनी देर इस्तेमाल करेगी, वो ख़त्म हो जाएगा। एंड इफ़ शी रियली विंस द हार्ट ऑफ द हस्बैंड, अगर उसने खामंद का दिल जीत लिया तो सारी ज़िंदगी वो मौज करेगी। चीज़ें ना भी हुई तो वो उसके पास वो ले आएगा। लेकिन अगर सिर्फ उसने वो ले लिया, उसको नाराज़ कर दिया, तो वो चंद चीज़ें लेके खुश वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह जो है आप भी मैं भी ये नीयत को दुरुस्त करने में इखलास और तवाज़ो के दर्जात जो इमाम शरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, फिर बंदा डिसहार्टन नहीं होता। लोग नहीं भी मान रहे, डिसहार्टन नहीं होते। अ पर्सन डजंट बिकम डिसहार्टन पीपल व्हेन दे आर नॉट इवन respecting you or giving you any protocol or anything whatsoever, but you are happy provided Allah is pleased with you and you are in the company of Allah. You don't need company of anyone else. Whoever will rely upon other things, lean upon other things, they are going to leave him sooner or later, so he will be disappointed. अल्लाह पाक मुझे और आपको अपनी मार्फत नसीब फरमाए और अल्लाह की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। May Allah subhanahu enable us to have the marifa, gnosis of Allah, and to have sincerity, and enable us to appreciate that what a great treasure and blessing which we have, which is to discover the greatness and the marifat of Allah, and to live in obedience and in the presence of Allah, and in akhirah to live whilst looking at Allah subhanahu wa ta'ala's face and hearing his kalam. How a great blessing forever and ever. This is true success. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.